Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of the Prabha Khaitan Foundation, I welcome you all to this session of Ek Mulaqat. In today's scenario, where all of us are practicing social distancing, no option otherwise, and with a change in our everyday lifestyle, we are really fortunate to bring you this session with none other than the Nobel Peace Prize winner, Mr. Kailash Satyarthi. Mr. Kailash Satyarthi is an internationally acclaimed children's rights activist. He has been a tireless advocate of children's rights for over 4 decades now. His interventions are spread across over 140 countries in the world in an endeavor to protect children from slavery, trafficking, forced labor, sexual abuse, and all forms of violence. He has been instrumental in bringing the issue of children in global and national development agendas, along with leading worldwide movements against child exploitation and upholding the rights of children for peace, safety, health, well-being, and education. His unrelenting efforts for restoring the rights of the marginalized and exploited children in the world won him the Nobel Peace Prize in the year 2014. With him in this conversation is Mr. Yatindra Mishra. Hailing from the lineage of the Ayodhya royal family, Yatindra ji is a poet, editor, music and cinema scholar. He has also presented a selection of Gulzar's film lyrics, Neelon Se Din, in 2010. He has also written a book about the 100 years of Hindi cinema, which deals with an analysis of cinema's musical journey titled Humsafar in the year 2013. In 2016, he has done an in-depth analysis of the musical journey of the great playback singer Lata Mangeshkar, based on a series of interviews spanning over a period of 7 years, titled Lata Surgata. The book received numerous prestigious awards, including the National Filmfare Award on Cinema Writing, titled Swarna Kamal, in the 64th National Film Awards in 2017. We also have with us Apra Kuchal, the honorary convener of the Prabha Khaitan Foundation for Rajasthan and Central Indian Affairs. So now over to you, Yatindra ji, to start the conversation. Please sit back and enjoy the session. नमस्कार, प्रभा खैतान फाउंडेशन का बहुत आभारी हूँ कि कैलाश सत्यार्थी जी के साथ मुझे बात करने के लिए बुलाया है। कैलाश जी, आपका स्वागत है। आपका परिचय प्रनीत जी ने अभी दिया और आपका परिचय किसी का मोहताज नहीं है। सत्यार्थी आपने अपने नाम के आगे उपनाम की तरह, अपने सरनेम की तरह लगाया, जिसका अर्थ ही है सत्य के मार्ग पर चलने वाला। दयानंद सरस्वती जी के सत्यार्थ प्रकाश से प्रभावित होकर हाई स्कूल में ही आपको ये प्रेरणा मिल गई थी। हम खुशनसीब हैं कि हमारे बीच में अपने समय में से समय निकाल कर कैलाश जी उपस्थित हैं। बाल श्रमिकों के लिए, बाल उत्पीड़न के लिए काम करने वाले बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कैलाश जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद यतिन जी। जी, आपका एक पक्ष कवि का है। आप बहुत सारी अच्छी मार्मिक, संवेदनशील, प्रेरणाप्रद कविताएं लिख रहे हैं। कविताओं पे हम बाद में आएंगे, लेकिन आपका स्वागत, आपका आगाज एक कविता से करते हैं। हिंदी के एक महत्वपूर्ण कवि हैं वरिष्ठ कवि राजेश जोशी। उनकी कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, और ये एक तरह से मुझे लगता है कि आपके काम का एक पूरी तरीके से एक पुनरावलोकन है। मैं उसकी 4 पंक्तियां पढ़ करके आपसे बात शुरू करता हूँ। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं?
कैलाश जी, आपका स्वागत है। बच्चों के जीवन, उसकी संघर्ष, उनके बचपन को बचाने का आपका आंदोलन 4 दशकों की यात्रा तय कर चुका है। और मुझे वो कहानी याद आती है साबो की, जब उसको छुड़ाने का, उसको रेस्क्यू करने का आपने 1981 में अभियान किया था। और उस जमाने में बाल श्रमिकों को बचाने के लिए उनको सेव करने के लिए कोई कानून भी नहीं बना था। उस समय एक पत्रिका थी, संघर्ष जारी रहेगा, आप निकालते थे, आप उसमें लिखते थे। उसमें किसी की रिपोर्ट छपने का मतलब होता था कि उसका उद्धार हो जाएगा, वो बच जाएगा। और वहां से आपका संघर्ष निकल करके आया है। साबो को छुड़ाने से लेकर के उस जमाने से जो एक लौ लगी, उसको 4 दशक की यात्रा हो गए हैं। आज पीछे पलटकर उस मुकाम को किस तरह देखते हैं जब ये यात्रा शुरू हुई थी? बहुत धन्यवाद। मैं भी प्रभा खेतान फाउंडेशन को धन्यवाद देने में आपकी आवाज में आवाज मिलाता हूँ यतीन जी। धन्यवाद सर। आपने जो साबो की कहानी याद दिलाई, तो अपने आप ही आपने हम करीब करीब 4 दशक पहले कम से कम चाहिए। दरअसल मुझे कलम से कुछ बचपन से ही, और आज ये मौका है कि कलम के कार्यक्रम के माध्यम से आप सबसे मुखातिब हूँ। लिखता रहता था मैं पत्र पत्रिकाओं में उन मुद्दों पर जिन्हें मुझे उठाना होता था या जो मुझे ठीक लगते थे। बच्चे, महिलाएं, समाज के सबसे उपेक्षित उत्पीड़ित वर्ग के लोग, कहीं उनकी भावनाएं, उनकी व्यथाएं, समस्याएं मेरी कलम से उजागर होती थी। तो एक पत्रिका हम लोगों ने निकाली, संघर्ष जारी रहेगा, और उसमें प्रयोग ये था कि सिर्फ ऐसे ही वर्गों के, ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में लिखा पढ़ा जाएगा जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिलती थी। ये मुद्दे भी नहीं थे उस समय। It was the time when the journalism or human journalism was not yet born in Indian mainstream media. तो बहुत गिने चुने पत्र पत्रिकाएं थे। तो अचानक एक व्यक्ति बहुत फ्रेजाइल, बहुत डरे सहमे हुए थे, मेरे दफ्तर में आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो उन्होंने मेरी पत्रिका की प्रति अपने लुंगी में बांध के रखी हुई थी, और जब उन्होंने वो दिखाई तो एक ही सवाल पूछा कि तो हुजूर, क्या मैं सही जगह पे आ गया हूँ? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप बताओ क्या बात है। तो उस आदमी का नाम था वासल खान जी। और वासल खान किसी तरह पंजाब के सरहिंद के इलाके के ईंट भट्टों से भागकर हमारे पास पहुंचे थे, केवल इस आशा से कि शायद उनकी कहानी अपनी पत्रिका संघर्ष जारी रहेगा में हम छापेंगे। और उन्हें वो पत्रिका इधर उधर भटकते हुए मिल गई थी जब वो अपने बेटी के लिए गुहार करते हुए चंडीगढ़ की सड़कों पे घूम रहे थे। और मुझे सुनकर बहुत हैरानी हुई और बहुत कष्ट भी हुआ कि आधुनिक भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी किस तरह चली जा रही है। पढ़ा तो था मैंने, लेकिन किसी व्यक्ति से ऐसे पहली बार मिलना था। और उन्होंने बताया कि करीब 10 साल पहले उनको और उनकी नवविवाहिता पत्नी को चुरा के, बहला फुसला के लोग ईंट के भट्टों पर काम करने ले गए थे अलीगढ़ के किसी गांव से। और उतने वर्षों में कभी उन्हें कोई पैसा नहीं दिया, कभी छूटने की आज़ादी नहीं दी, और बहुत शोषण होता रहा। ये भी वहीं पैदा हो गए। उनमें सबसे बड़ी बच्ची 15 साल की साबो थी। और एक दिन माँ ने देखा कि कुछ अज्ञात लोग कहीं से आके बच्ची के कपड़े करीब करीब उतार के सौदा करना चाहते हैं और उसको कहीं खरीद के ले जाना चाहते हैं। तो अपने पति से कहा उन्होंने। वासल खान किसी तरह रात को छुपके ईंट के भरे हुए ट्रकों में भाग गए। पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं, लेकिन बाप का दिल था, बेटी बिकने जा रही थी वेश्यावृत्ति के लिए। सौदा नहीं हो पाया था उस दिन संयोग से। तो इस तरह वो हमारे पास पहुंचे। लेकिन जिस वक्त मैं ये बात सुन रहा था तो मुझे लगा, मैं भी 25-26 साल का था, कि अगर साबो मेरी छोटी बहन होती तो मैं लिखा पढ़ी करने के बजाय सारी दुनिया को उलट पुलट कर देता।
मैं बड़ा अहिंसा में भरोसा रखने वाला हमेशा से हूँ। तो उलट पुलट करने का अर्थ ये है कि कुछ ना कुछ बड़ी एक कोशिश करता। तो हम चले गए कुछ मित्रों को साथ लेकर, और बड़ा मुश्किल था उस समय, हमारे पास संसाधन भी नहीं थे। मेरी अपनी पत्नी सुमेधा जी से आग्रह किया और वो भी तैयार थी खुद ही कि किसी तरह साबू और परिवार को छुड़ाया जाए। तो उनके गहने शादी के जो थे वो लेके हम लोगों ने किसी तरह व्यवस्था की। लेकिन वहाँ हमारी पिटाई हो गई, वासल खान पकड़े गए, हम किसी तरह नंगे पांव लौट के आए वापस। मुझे लगा कि रास्ता यहाँ से कुछ नया खुलेगा। जब कोई रास्ता बंद होता है तो कहीं ना कहीं खिड़की, कहीं ना कोई दरवाजा, कोई ना कोई रोशनी का बिंदु कहीं ना कहीं से आता है। तो किसी मित्र की मदद से हमने कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट में आदेश दिया गया कि उन सबको यहाँ लाके प्रस्तुत किया जाए। और चंद दिनों के अंदर ही 36 बच्चे, महिलाएं और पुरुष, जिनमें साबो भी थी, उसका परिवार भी था, वो आजाद करा दिए गए। और जब दिल्ली के कोर्ट से हम लोग लौट रहे थे, मंडी हाउस के पास हमारा ऑफिस था और इंडिया गेट आता था वहां से, तो बच्चे बंदरों की तरह उछल रहे थे सड़कों पर, या यूं कहिए कि जैसे किसी बाल्टी में, डब्बे में किसी ने मेंढकों को बंद कर दिया हो और अचानक खोला हो तो उछल के भागते हैं। तो आजादी के बारे में खूब पढ़ा था हमने, सुना था, मुक्ति, मोक्ष, लिबरेशन, ये सब सुन पढ़ रखे थे। लेकिन एहसास मुझे पहली बार हुआ कि आजादी होती क्या है, जब बच्चे उस तरह उछलते कूदते भाग रहे थे और मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था और सड़क पे ला रहा था और गाड़ियां हॉन्क करे जा रही थी। उनको अंदाज नहीं था कि ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर। लगता है कि मेरी अपनी मुक्ति की शुरुआत वहीं से हुई। जब वो बच्चे मुक्त हुए, उनके चेहरे पर आजादी की मुस्कान आई, तो मुझे लगा कि मैं भी मुक्त हो रहा हूँ। और तब से फिर हमारे संगठन ने, हमारे साथियों ने 40 सालों के अंदर 90,000 के करीब बच्चों को आजाद कराया है। वो तो सीधी कार्रवाई के जरिए हुए हैं, बाकी तो लाखों बच्चे दूसरे प्रयासों से मुक्त हुए हैं, कानूनी प्रयासों से। लेकिन उनकी मुक्ति तक ही मामला सीमित नहीं था, कानून बनवाने थे भारत के अंदर और दुनिया के अंदर, सामाजिक चेतना पैदा करनी थी, क्योंकि ये मुद्दा नहीं था। आपको रास्ता ना हो तब तो चलता है, लेकिन कोई मुद्दा ही ना हो, नए जगह पर, नए टेरेन में आपको रास्ता बनाना पड़े और नई एक चोटी, शिखर तलाशनी पड़े, तो उसका जो मजा है वो मजा हम लेते हैं। और हमें अच्छा लग रहा है कि आज ये मुद्दा सारी दुनिया का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं सर। अवध के एक सूफी शायर हुए आमिल, उनका एक शेर है, हजार जुल्मतें हो, आंधियां हो, तूफान हो, चराग अज़्म का एक नूर लेके जलता है। तो आपने अज़्म का चराग जलाया इन बच्चों की जिंदगी में, इसके लिए पूरे देश को, हम सारी मानवता को शुक्रगुजार होना चाहिए। जो मैंने आपका जीवन पढ़ा है, मैं उन चंद सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिन्होंने आपकी आत्मकथा के शुरुआती चैप्टर्स पढ़े हैं, अभी देखे हैं, आप काम कर रहे हैं उस पर। जो मैंने पाया है, आप पूरी तरह से गांधीयन हैं, एक गांधीवादी विचारधारा आपकी रही। और 1969 में जब गांधी जी की जन्म शताब्दी हुई तो आपने एक बड़ा बीड़ा उठाया। उस समय आप बहुत युवा थे और आपने उस समय समाज के बड़े लोगों को और ऊंची जाति के लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि नीची जात के लोग आपके लिए भोजन बनाएंगे और एक सहभोज होगा जिसमें सब लोग आएंगे भोजन करने। सबने बहुत आपको इनकरेज किया, आपकी टोली को इनकरेज किया। दलित महिलाएं आई, शूद्रों की घर से महिलाएं आई, उन्होंने खाना बनाया, लेकिन कोई लौट के नहीं आया। आप लोग उस संघर्ष को, उस दिन समाज के इस दुचित्तेपन को देख रहे थे। फिर आप लोगों ने भोजन किया और जब आप घर लौट के गए तो घर को बिरादरी बहिष्कृत करने का अभियान चल रहा था। आपने माफी नहीं मांगी और आपको घर से 2 साल निर्वासित जीवन जीना पड़ा। उसी समय आपने अपना सब नेम त्यागा और आपने कहा मुझे बिरादरी से बाहर किया जाए, मैं ही बिरादरी को छोड़ता हूँ। तो ये जो एक गांधीवादी संघर्ष आया और उस समय से आपके मन में विचारधारा आई, तो वो कौन से उस समय तत्व आपको प्रेरित करते थे जिसने आपका ये किरदार रचा, कैलाश सत्यार्थी हमें दिया है? देखिए, निश्चित तौर पर गांधी जी के जीवन ने, उनके संघर्षों ने, उनके आदर्शों ने बहुत प्रभावित किया। मैं खुद को गांधीवादी तो नहीं कहता हूँ,
गांधीवादियों के बहुत स्वरूप हैं, बहुत अर्थ हैं, बहुत नाम हैं, बहुत उनकी व्याख्याएं हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इतिहास में बहुत कम लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत गहरे मानवीय मूल्यों को जन संघर्ष में, जन आंदोलन में और यहाँ तक कि आजादी के राजनीतिक आंदोलन में तब्दील कर दिया हो। एंड गांधी वाज डेफिनेटली वन ऑफ देम और द ओनली वन इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो वो एक असर था। लेकिन मैं स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित था। एक वक्त ऐसा था कि मैं सोचता था अपनी किशोरावस्था में कि मुझे भी सन्यासी बनना है। तो मैंने वैसे ही भगवा वस्त्र पहन के और अपने कुछ मित्रों को इकट्ठा करके उपदेश देना शुरू कर दिया था। उपदेश देने लगा उनको और बताने लगा कि द्वैतवाद, अद्वैतवाद और त्रैतवाद में क्या फर्क है। वो सब चीजें बहुत कम उम्र में मैंने पढ़ी और जानने की कोशिश की, सत्य की खोज। मैं ये तो नहीं कहता जो आपने शुरू में कहा कि सत्यार्थी का अर्थ सत्य के रास्ते पर चलना है, लेकिन सत्य के अर्थ को खोजने का प्रयास जरूर है, क्योंकि जब सत्य कोई पा जाता है तो शायद शब्दों से उसे बयान नहीं कर सकता। सत्य का रास्ता शब्दों का रास्ता नहीं होता, अनुभूति का रास्ता है। तो अगर हमको कुछ अनुभूति होती है तो सत्य की, तो वहाँ हम चुप होने पड़ता है हमको। तो ये तमाम हमारे दर्शन शास्त्रों में व्याख्यायित है। लेकिन सत्यार्थी नाम मैंने इसीलिए रखा उस वक्त क्योंकि मुझे लगा कि इतना झूठ, इतना पाखंड हमारे समाज में फैला हुआ है, हर महापुरुष के नाम पर, हर विचारधारा के नाम पर, धर्मों के तो नहीं कहना चाहिए मुझे, मतों के नाम पर। धर्म तो एक ही है मानव का, लेकिन संप्रदायों के नाम पर। तो मुझे लगा कि चलिए सत्य के खोज में निकलते हैं। यहाँ कहीं फुल स्टॉप नहीं है। सत्य की खोज तो कामा लगाते रहने की खोज है। जितना हासिल हो गया उतने में आनंद लिया, फिर आगे चल पड़ा। बहुत सुंदर सर। आपने बहुत सारे मंचों पर अपने इंटरव्यूज में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर ये बात कही है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल जी। आपने बहुत सारे मंचों पर जाकर के ये बात कही है, करुणा के भूमंडलीकरण की बात। उसके माध्यम से बच्चों का जीवन बेहतर किया जाता है, कर सकते हैं। बाल श्रमिकों के जीवन में कुछ बेहतरी, कुछ रोशनी लाई जा सकती है, दिया जलाया जा सकता है। ये करुणा का भूमंडलीकरण क्या है, इसे थोड़ा विस्तार दीजिए। देखिए, हम सब अनुभव कर रहे हैं कि व्यापार का, बाजार का, सामग्री का, जो सामान हम बनाते हैं, प्रोडक्ट्स का, ज्ञान का, टेक्नोलॉजी का वैश्वीकरण हुआ है। उसके अच्छे बुरे दोनों परिणाम हम भुगत रहे हैं। और इस समय तो हम लॉकडाउन में बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग करके टेलीविजन पर जो डिप्रेसिव खबरें हैं वो दुनिया में देख के, भारत में और सारी दुनिया में जो चल रहा है, लगता है कि कहीं ना कहीं हमने प्रकृति के साथ अन्याय किया है और जो वैश्वीकरण के पीछे हम भागे हैं वो शायद एडजस्ट करने की जरूरत है, रिविजिट करने की जरूरत है। लेकिन मैं बहुत बहुत दिनों से ये कहता रहा हूँ, कई सालों से ये कह रहा हूँ कि हमको करुणा का वैश्वीकरण करना चाहिए। और करुणा का मतलब किसी के प्रति सहानुभूति नहीं है और न ही किसी के प्रति संवेदना व्यक्त करना है। सहानुभूति तब होती है जब हम किसी को देखकर, उसके दुख दर्द को देखकर उसके प्रति कोई सरोकार रखते हैं थोड़ी देर के लिए, सहानुभूति जता भी देते हैं कई बार। उसके थोड़ा से अंदर जाके संवेदना है जब हम दूसरे के दुख दर्द को अपने दुख दर्द की तरह महसूस करने लगते हैं। तो अच्छी बात है और गहरी बात है, आपको अच्छा इंसान बनाती है। लेकिन करुणा एक ऐसा ईश्वरीय वरदान है जो हमें न केवल दूसरों के दुख दर्द, दूसरों की परेशानियों को अपनी परेशानियों की तरह महसूस कराता है, बल्कि उन परेशानियों को उसी तरह दूर करने के प्रयास भी कराता है जैसे हम अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। तो उसमें हमें कोई बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ती है। अगर हमारे पाँव में चींटी काट रही है तो हमारा दिमाग, हमारे हाथ, हमारा पूरा शरीर इस हिसाब से चलता है
कि सप्रयास करना नहीं पड़ता, हमारा हाथ वहीं जाके उस चींटी को रोकेगा या हटाएगा। तो इसी तरह जब हम दूसरों की दिक्कत को समझते हैं तो उसके साथ साथ उनको दूर करने के प्रयास की अनुभूति भी होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि ईश्वर इतना कंजूस तो नहीं हो सकता कि अगर आपको कोई चीज प्यार से देगा, मोहब्बत से देगा, तो आपको ऐसी थोड़ी सी पकड़ा देगा हमारी तरह, मनुष्यों की तरह। अगर ईश्वरीय वरदान है प्यार करना, तो प्यार करने के लिए आपको छोटा सा नहीं देगा प्यार का टुकड़ा कि आप किसी एक ही आदमी से करो या 4 लोगों से करो। करुणा छोटा सा नहीं होगा, करुणा का सागर देगा आपको उड़ेल कर। और हम सबके अंदर छोटा सा इंसान है देखने में, लेकिन हमारी जो आत्मा है, जो परमात्मा की ही एक झलक है, उसमें उसने अद्भुत करुणा का सागर दिया है। और हम चाहें तो उस करुणा के सागर में सबको समेट सकते हैं, केवल मनुष्यों को नहीं, केवल पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को नहीं, बल्कि पूरे पेड़ों को, पहाड़ों को, नदियों को, सबको उस करुणा के भाव से जोड़ सकते हैं। तो जो करुणा का जोड़ है वैश्वीकरण, उसके माध्यम से होना चाहिए, जहां हम एक दूसरे को, so when I say the globalization of compassion, it is also connected with creating a supply chain of gratitude। एक कृतज्ञता का भाव सबके अंदर आएगा, और एक लविंग काइंडनेस जो है वो किसी के ऊपर दया या रहम करने का भाव नहीं है, वो किसी के साथ उस प्यार के साथ जुड़ने का भाव है, जहां आप एक समानता के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो ये सब चीजें करुणा के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं करुणा को केवल एक धार्मिक नजरिए से कि हमें धर्म ग्रंथों में क्या सिखाया गया उसी दृष्टि से अकेले से नहीं कह रहा हूँ। मैं एक बहुत व्यवहारिक पक्ष कह रहा हूँ कि जब आप करुणा से प्रेरित होते हैं तो आप एक लीडर होते हैं, क्योंकि आपको कुछ करना पड़ता है दूसरों की परेशानी दूर करने के लिए। आप इनिशिएटर होते हैं, आप करेजियस होते हैं, आप कनेक्टेड होते हैं, आपके अंदर वो सारे गुण आते हैं जो परमात्मा से हमें सीखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि राजनीति में करुणा बहुत आवश्यक है। जब आप अपने वोटर्स को या नॉन वोटर्स को, जब आप देश के हर नागरिक को उसी भाव से देखते हैं कि अगर वो कष्ट में है तो मैं भी कष्ट में हूं, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं या मैं राजनीति कर रहा हूं, तो हम उसके ऊपर रहम नहीं कर रहे उस पर, बल्कि उसका कष्ट मेरा कष्ट है और उसके भाव को उसी तरीके से हम सुलझाएं। राजनीति के अलावा अर्थनीति भी वही होनी चाहिए। अर्थनीति अगर करुणा से प्रेरित अर्थनीति हो तो इतनी विषमता जो दुनिया में बढ़ती जा रही है नहीं बढ़ेगी, इतनी ज्यादा गरीबी, भुखमरी, इतनी परेशानियां जो बढ़ी हैं वो नहीं बढ़ेंगी। मैं तो कहता हूं कि धार्मिक लोगों को भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में भी करुणा को जीना चाहिए। करुणा की भाषणबाजी करने के बजाय अगर करुणा से प्रेरित होकर लोग वहां जिएंगे तो शायद हमारे यहाँ कोई भी सांप्रदायिक वैमनस्य नहीं रहे पूरी दुनिया। बहुत सुंदर बात आपने कही। आपकी जो विकास यात्रा है जिसमें विवेकानंद और द्वैत और अद्वैत की परंपरा से निकल कर आप करुणा करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपका जो विचार है, जो आपकी थ्योरी है, जो मानवता के प्रति आपके आग्रह है, वो कहीं बुद्धिज्म तक जाते हैं, कहीं गांधी के उस मान्यता तक जाते हैं जहां वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाड़े रे की बात होती है, जहां मीराबाई कहती हैं संत देख दौड़ आई जगत देख रोई। तो जो एक करुणा का पूरा एक जो एक वात्सल्य का पूरा जो एक घटाटोप है, जो पूरा उसका एक प्रसार है, वो कहीं हमें बुद्धिज्म की तरफ ले जाता है, हमें कहीं बाइबल की तरफ ले जाता है, जहां मसीहाई रूप में दूसरों की सेवा, दूसरों के प्रति प्यार, दूसरे के प्रति मानवता दिखाने की बात की जाती है। तो सच्ची बात तो ये यतीम जी कि मैं बहुत विद्वान आदमी नहीं हूँ, इसलिए मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो प्रेरणा हमेशा से है और रहेगी वो बच्चे हैं। और मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगर तुझे कुछ देना है कैलाश सत्यार्थी को, तो उनके बचपने को मत छीनना, उनको भीतर से हमेशा बच्चा ही रहने देना। अगर तुम मुझे ये दे सको परमात्मा तो मेरा कल्याण होगा। मेरे बचपन को, मेरे अंदर के बच्चे को मत मरने देना। आपने वात्सल्य शब्द का प्रयोग किया, इसलिए ये बात कह रहा हूं मैं कि मेरे लिए वात्सल्य केवल एक उम्र नहीं है या एक का एहसास नहीं है। वात्सल्य का अर्थ है सरलता, सादगी, पारदर्शिता, सत्य व्यवहार, और सबसे बड़ी बात है कि बचपन का अर्थ है दूसरों को क्षमा कर देना।
वो ग्रंथियां मन में नहीं पालना। आपस में बच्चे लड़ेंगे, पीटेंगे, करेंगे, गाली गलौज करेंगे, घंटे 2 घंटे में फिर एक जैसे हो जाएंगे। और हम तो अगर थोड़ा सा एक शब्द भी निकल जाए, जैसे अभी मैं बोल दूं कुछ ऐसी चीज लोगों को पसंद ना आए, तो शाम होते होते ट्रोलिंग हो जाएगी। कैलाश सत्यार्थी जी ने बिल्कुल किसान फाउंडेशन के कलम कार्यक्रम में ये बोल दिया। तो जी। मैं बोल सकता हूँ, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जी होने के साथ साथ ये जो द्वेष है ये बढ़ता है, ये जो झूठी होड़ है वो बढ़ती है। बच्चों में जो होड़ भी होती है तो बहुत ही सरल और सादगी भरी होती है, सत्य होती है, प्यार करने वाली होती है। तो बच्चों से हमें ये सत्य और पारदर्शिता और क्षमा करने की प्रवृत्ति, नई नई चीजें सीखने की प्रवृत्ति सीखनी चाहिए। हम तो थोड़ा बहुत पढ़ जाते हैं तो समझते हैं कि अब तो पढ़े, लेकिन बहुत कबीरदास अच्छी बात। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित हो, ठीक है। हाँ, 2.5 आखर पढ़े तो ठीक है। तो इसी तरह का है। तुलसीदास ने बहुत भी कह खूबसूरत। दिया, पर हित सरित धर्म नहीं भागी। नहीं पूरे भाई धर्म की सर, व्याख्या आधी चौपाई में कर देते हैं तुलसीदास। सही है। तो ये चीजें हमें बच्चों से सीखनी चाहिए। आपका एक पक्ष ये है, जब आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, आपको भाषा पे एकाधिकार है, लेकिन जब आपको नोबेल पीस प्राइज मिला तो वहां पर जाकर के आपने अपनी मातृभाषा में अपना भाषण दिया, जबकि वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हिंदी से कनेक्टेड नहीं थे, उसके लिए दुभाषा की जरूरत थी। मातृभाषा को लेकर ये आग्रह और वैश्विक मंच पर अपने को अपनी भाषा के साथ ले जाने का सरोकार, मैं चाहूंगा कि इस पर प्रकाश डालें और हमारे जो प्रभा खेतान फाउंडेशन से इस समय जुड़े हुए लोग हैं वो सुने कि मातृभाषा को लेकर के एक व्यक्ति जो परोपकार के लिए लगा है, जो बचपन बचाने के लिए लगा है, वो भाषा को लेकर भी कितना संजीदा है। देखिए, मैं बताऊं कि मेरा अंग्रेजी पे एकाधिकार नहीं है। अंग्रेजी मैंने बहुत दिनों बाद पढ़नी सीखी। मैं साधारण परिवार में पैदा हुआ, बहुत साधारण स्कूल में पढ़ा। मेरे पिताजी एक पुलिस कांस्टेबल थे जिनकी अल्पायु में मेरी मृत्यु हो गई थी, मेरी अल्पायु में। तो पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन चूंकि मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, तो फिर मुझे जम के अंग्रेजी पढ़नी पड़ी। और खासकर इंजीनियरिंग के लिए तो फिर आपको और ज्यादा तैयारी करनी होती है, तो वो सब विषय अंग्रेजी के थे। तो जहां तक अभी जाने की बात है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, तो मैं एक मजेदार बात सुनाता हूँ कि जब ये सूचना आई तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। जब कहीं से सूचना आई कि आपको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो मैं सोचा कि पहली बार भारत में पैदा हुए किसी भारतीय के साथ ये कोई मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन वो सच्चाई थी। तो मैंने सोचा, मेरे मन में एक बहुत बचपन से सपना था नोबेल पुरस्कार को लेकर, और वो सपना इतना सा था कि मैं किसी नोबेल लॉरिएट के साथ एक फोटो खिंचवा लूं, अपनी तस्वीर। क्या बात है। वो अपने घर में, बाहर, जहां जहां हो, मढ़ा के रख लूं, क्योंकि मुझे उनके प्रति बड़ा सम्मान का भाव था, खासकर शांति पुरस्कार विजेताओं के लिए। मुझे 50 साल तक ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं किसी से हाथ मिला सकूं या फोटो खिंचवा सकूं। एक बार जर्मनी में दलाई लामा जी मिल गए, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ और वो चूंकि इतने बड़े आदमी थे कि मुझे उनके साथ फोटो खिंचाने का मौका नहीं मिला। हाथ जरूर मिला लिया, लेकिन मैं इधर उधर झांक रहा था कोई फोटोग्राफर मिले तो फोटो खींच लूं, नहीं हुआ। तो जब ये सर में मैं बैठा था और उस दिन फोन किया, तो मैंने सोचा यार ये मौका हाथ से क्यों जाने दे रहा है कैलाश, तू जल्दी से कुछ कर डाल। तो मैं जल्दी से उठा और बाथरूम में गया और वहां जाके शीशे के सामने खड़ा हुआ और 10-15 सेल्फी ले ली। मेरे साथ ही सेल्फी लेनी मैंने, तो मेरे साथ पहला नोबेल लॉरिएट का फोटो है। तो मैं बड़ा, तो अब लोगों को पता लग गया, तो लोगों ने कहा कि अब आपको बढ़िया अंग्रेजी में बोलना चाहिए अच्छे से अच्छा। तो मैंने कहा मैं बोलूंगा अंग्रेजी में, लेकिन मैं इसकी शुरुआत किसी वेद मंत्र से करूंगा और इसका समापन भी वेद मंत्र से करूंगा, और कम से कम 2-4 मिनट तक हिंदी में बोलूंगा। मुझे 15-20 मिनट वहां बोलना है, तो अपने भाषण में हिंदी में बोलूंगा, संस्कृत और हिंदी में। तो इसके कई कारण थे। एक तो कारण ये है कि मैं ये मानता हूं कि जो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान और आत्म गौरव और आत्मोन्नति का मार्ग है, वो हमारी माँ की बोली हुई भाषा से गुजरता है।
अगर हमें उस मार्ग पर चलना है और उसको पकड़ के रखना है, तो भारतेंदु जी ने ठीक ही कहा कि निज भाषा उन्नति है सब की मूल। तो मैं उसको बांधने में था। लेकिन मुझे एक और चीज थी कि 100 साल के उनके इतिहास में नोबेल पुरस्कार के पहला ऐसा मौका है कि कोई देशी खांटी भारतीय वहां उस मंच पर खड़ा होगा बोलने के लिए शांति पुरस्कार के। तो ये मौका ईश्वर करे हर साल आए, लेकिन पहली बार आया है तो हमें हमारे ऋषियों मुनियों के वेद मंत्र से शुरू करना चाहिए। तो मैंने वो संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम वाला मंत्र पढ़ा और उसकी व्याख्या करी और फिर हिंदी में बोला। सबको 2 दिन भी हिंदी में दिया, जल्दी जल्दी अपने कान में वो लगाए इंटरप्रिटेशन के। तो मैंने कहा कि हिंदी में, मैंने सोचा कि हिंदी में मैं बोलूंगा। और वहां पर हस्ताक्षर होते हैं, जब आप कुछ लिखते हो हस्ताक्षर करते हो तो उसमें नेल्सन मंडेला के, दलाई लामा के, मार्टिन लूथर किंग के, सबके एक एक पेज पे हैं। तो उसमें अभी तो किताब आधी भी नहीं भरी है, मेरे ख्याल से 200 पेज की वो बुक है, उसमें से 101 पेज भरे होंगे, 100-125। तो मैंने उसमें हिंदी लिखा, हिंदी में हस्ताक्षर किए। मैंने सोचा कि ये कम से कम मैं अपनी माँ के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और हिंदी मेरी माँ है। बहुत सुंदर सर। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक नोबेल लॉरिएट के साथ फोटो खिंचा सका हूँ आपके साथ। ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे कम उम्र में यह मौका मिला। मैं अयोध्या के राजघराने के वंशज के साथ बैठा हूँ। अरे नहीं, और रामचरितमानस की पंक्ति को मैंने अभी पढ़ा, तो मेरा भी सौभाग्य है। सर बहुत आभार है। और प्रभा खेतान जी का अपना जो कंट्रीब्यूशन रहा है साहित्य के अलावा और मानव सेवा के क्षेत्र में, तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। ये मेरा बहुत बहुत वो ऑनर है मेरे लिए कि मैं आज आपके साथ, और मैं बहुत रोमांचित हूँ बात करते हुए। एक व्यक्तिगत सवाल करना चाहता हूँ। आपने कविताएं लिखनी शुरू की, पहली कविता अपनी प्रेमिका के लिए लिखी जो बाद में आपकी धर्मपत्नी हुई। मैं चाहूंगा कि उस कविता से आगाज हो और आप वो कविता सुनाए हम। तो ये जो प्रेमिका, सुमेधा जी, अगर सुमेधा जी सुन रही हो तो मैं चाहूंगा कि वो सुने और आप उन्हीं को संबोधित हो और हमारे सारे दर्शकों को उससे शेयर करें। दुर्भाग्य से सुमेधा जी का स्वास्थ्य कुछ खराब है, तो वो कुछ एक दवाई लेके लेती हैं, लेकिन ठीक हो जाएंगे शाम तक। लेकिन जो मेरा प्रेम भी शुरू हुआ वो मेरी कलम के वजह से शुरू हुआ था। कथा के जो ड्राफ्ट है उसमें आपने पढ़ा होगा कि वो एक की संपादक थी दिल्ली में इंजीनियरिंग की। मैं शाम अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, लेकिन मैं लिखता था उनकी पत्रिका में। और जब मेरा दिल्ली आना हुआ तो मैंने सोचा कि अपने संपादक प्रकाशक से मिला जाए। संपादिका जी की फोटो मैंने देख रखी थी, वो बेहद 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 सुंदर थी और लिखती भी अच्छा थी। तो मेरे मन में आया कि चलो मिला जाए, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो शादीशुदा हैं या जो भी है, कोई उनका बॉयफ्रेंड टाइप। बॉयफ्रेंड तो नहीं होते थे उन दिनों, लेकिन हो सकता है किसी से बात चल रही। तो जब मैं गया और मिला और मैंने अपना परिचय कराया तो सुमेधा जी मिली वहां पर, और उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को कैलाश सत्यार्थी कह रहे हो? इतने अच्छे गंभीर लेख लिखने वाला कोई 60-70 साल का पढ़ा लिखा अच्छा आदमी होगा, तुम ये पैंट शर्ट पहने हुए, बैल मार्टिन टाइप पहने हुए घूम रहे, आधी सी शर्ट पहने हुए, तो तुम तो वो नहीं हो सकते। बहुत जद्दोजहद के बाद मैं उनके पिताजी के सामने, जो कि उस के साबित कर पाया कि नहीं भैया मैं ही वो व्यक्ति हूँ। तो वो इतने खुश हुए। सुमेधा जी तो चली गई थी मुझे अस्वीकार करके कि ये कैलाश सत्यार्थी है ही नहीं, कोई मस्कारा टाइप आदमी है। मैं उनके पिताजी को जब थोड़ा बहुत प्रभावित कर पाया तो उन्होंने कहा कि बेटा कहाँ ठहरे आप नौजवान आज रात को दिल्ली में? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ पंडित जी, ठहरने का तो अभी कुछ ढंग से है नहीं है, देख लूंगा किसी दोस्त के यहाँ ठहर जाऊंगा। तो हालांकि मेरा दोस्त था, मैं ठहर भी जाता वहाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कहीं नहीं ठहरे हो तो मेरे साथ चलो, मेरे घर पर वही ठहर जाना, रात को गपशप भी हो जाएगी। वो अंधा क्या चाहे, दो आंख एक ही आंख मिल जाती, तो मुझे तो दोनों मिल गई। उनको ले गए मुझे घर पर और घर पे बात की, पिताजी से परिचय हुआ।
मैंने फिर थोड़े दिन बाद दिवाली आई तो एक कविता लिखी, लेकिन जो मूल उसका था, थोड़ा हम एक दूसरे को जानने लगे थे, पसंद भी करने लगे थे, तो उसकी 2 ही पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ जी। उजली इमारत के लाख दिए बेमानी, उजली इमारत के लाख दिए बेमानी, चलो बने एक दिया अंधियारी बस्ती का। बहुत मैंने सोचा कि ये अगर इनका जवाब आया तो उससे साबित हो जाएगा तय कि अब हमारा रास्ता एक होने वाला है। क्या हम लोग अंधियारी बत्ती के दिए बनने का सामर्थ्य और हिम्मत रख सकते हैं मिलकर? तो उनका जवाब बहुत अच्छा आया, कविता में तो नहीं, गद्य में आया, लेकिन वहीं से हमारे उस रास्ते की शुरुआत हुई जो ईश्वर की कृपा से एक अच्छे परस्पर सहयोगी और मित्रों के नाते चल रहा है। बहुत बढ़िया कैलाश जी, बहुत आभार कि आपने अपना पर्सनल मोमेंट हमसे शेयर किया। आपने इधर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत मार्मिक कविताएं हैं, देश और समाज की परिस्थिति पर है। मैं चाहूंगा कि कोई अपनी पसंद की एक कविता हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें, पढ़कर सुनाएं और उसका कंटेक्स्ट भी बताएं। यतीन जी, कल मैंने एक कविता लिखी जी। आज उसको किया, और वो कविता जो आज के ये देखिए क्या आ गया, अखबार में देख रहे हैं, टेलीविजन में देख रहे हैं, और बहुत ही कष्टप्रद स्थिति है कि किस तरह ये हमारे निर्माण कार्य करने वाले मजदूर भाई बहन हैं, वो सड़कों पर ट्रकों से कुचल कर मर रहे हैं, साइकिलों पर कंधों पर अपने बच्चों को लाद कर जा रहे हैं, और उनको कोई बस या ट्रक मार के निकल, किसी अमीर की मार के निकल जाती है। रोज ये घटनाएं हो रही हैं। और थोड़े दिन पहले आपको पता होगा कि भुसावल औरंगाबाद के पास एक ट्रेन की दुर्घटना में 16 इस तरह के भाई मारे गए थे। वो कुचल वो लौट रहे थे महाराष्ट्र होते हुए, तो ट्रेन गई थी। तो पूरे इस व्यथा को, इस दर्द को जो शायद करोड़ों लोग भुगत रहे हैं, उनके लिए मैंने एक कविता लिखी है। जी, सुनाता हूँ। खून से सनी रोटियों के साथ चिपकी पड़ी है जो, खून से सनी रोटियों के साथ चिपकी पड़ी हैं जो रेल की पटरियों पर, वो मेरी उंगलियां हैं। खून से सनी रोटियों के साथ चिपकी पड़ी हैं जो रेल की पटरियों पर, वो मेरी उंगलियां हैं। बड़ी मेहनत से कमाई थी ये रोटियां, लंबे सफर के लिए बचाई थी ये रोटियां। रोते रोते मुझे छोड़कर माँ भूखी सो पाई होगी, रोते रोते मुझे छोड़कर माँ भूखी सो पाई होगी। उसने तो बांध कर रख दी थी पूरे आटे की रोटियां, शहर तक के मेरे लंबे सफर के लिए। नहीं मालूम था रास्ते एक तरफा होते, नहीं मालूम था रास्ते एक तरफा होते। माँ के आंसुओं से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा तकलीफ दे थी उसकी खांसी और सूखती काया। माँ के आंसुओं से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा तकलीफ दे थी उसकी खांसी और सूखती काया। बहुत रुलाता था भूखी गायों का रभाना, शेरू की असमय मौत और साहूकार का रोज रोज हरियाणा। पिता के हाथों खोदे गए मगर अब सूखे पड़े कुएं में, पिता के हाथों खोदे गए मगर अब सूखे पड़े कुएं में, यूं ही बार बार झांकना बहुत रुलाता है, यूं ही बार बार झांकना बहुत रुलाता है। संकट एक कहीं से आया और मुझे एहसास दे गया, संकट एक कहीं से आया और मुझे एहसास दे गया, मेरे और शहर के सपने अलग अलग हैं, मेरे और शहर के सपने अलग अलग हैं। मेरे
और उनके अपने भी अलग अलग हैं, मेरे और उनके भी, उनके अपने भी अलग अलग हैं। बहुत हो चुका, लौट पड़ा था, उसे पकड़ने छूट गया था जो अपने घर पर। बहुत हो चुका, लौट पड़ा था, उसे पकड़ने छूट गया था जो अपने घर पर। मेरी माँ को मत बतलाना जो देखा तुमने पटरी पर। मेरी माँ को मत बतलाना जो देखा तुमने पटरी पर। कहना कैसे मर सकता है जिसकी नजर उतारी थी तूने उधार की राई लेकर। कहना कैसे मर सकता है जिसकी नजर उतारी थी तूने उधार की राई लेकर। बोल सको तो सच कह देना, ईंट ईंट पत्थर पत्थर में बसता है अब तेरा बेटा। बोल सको तो सच कह देना, ईंट ईंट पत्थर पत्थर में बसता है तेरा बेटा। बसता है वो हर मकान में, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में। देख रहे हो जो कुछ अपनी आंखों से, देख रहे हो जो कुछ अपनी आंखों से। हाथों में जो कुछ भी तुम छू सकते हो, हाथों से जो कुछ भी तुम छू सकते हो, उन सब में मैं हूं, मैं भी उन सब में मैं हूं, मैं अब भी जिंदा हूं। देख रहे हो जो कुछ तुम अपनी आंखों से, हाथों से जो भी कुछ तुम छू सकते हो, उन सब में मैं हूं, मैं अब भी जिंदा हूं। मेरे सपने मरे नहीं हैं, फिर मैं कैसे मर सकता हूं। मेरे सपने मरे नहीं हैं, फिर मैं कैसे मर सकता हूं। कायनात जब तक जिंदा है मैं जिंदा हूं। मरते वो हैं जिनके सपने मर जाते हैं। जब तक जिंदा है मैं जिंदा हूं, मरते वो हैं जिनके सपने मर जाते हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत ही बेहतरीन कविता। पाश की कविता याद आती है कि सबसे बुरा होता है हमारे सपनों का मर जाना, या नीरज जी कहते हैं चंद सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। और एक बिल्कुल दूसरे यथार्थवादी धरातल पर आकर आपकी कविता खड़ी है। समय हमारा पूरा हो रहा है। अभी प्रभा केतान फाउंडेशन के लोग आपसे सवाल करेंगे, उनसे जुड़े लोग। चलते चलते मैं 2-4 छोटे सवाल करना चाहता हूँ। आपसे 2-4 छोटे सवाल कर रहा हूँ। एक सेकेंड जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी एकदम। हाँ, आपकी सबसे प्रिय किताब कौन सी है, सबसे फेवरेट बुक? सबसे फेवरेट बुक है मेरी भगवत गीता। क्या बात। भारत का सबसे पसंदीदा राजनीतिक चरित्र, फेवरेट पॉलिटिशियन इन इंडियन पॉलिटिक्स? बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन महात्मा गांधी हैं मेरे लिए। क्या बात है। हिंदी फिल्मों का कोई ऐसा गाना जो संघर्ष के लिए आपको प्रेरणा देता हो? कई गाने हैं इस तरह के। मुझे पता नहीं कि हम होंगे कामयाब, किसी हिंदी फिल्म में आया कि नहीं आया। जी। ये कामयाब हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये एक गीत है जो हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं बाहर होता हूँ, विदेश में होता हूँ, तो कई बार अपने मित्रों के बीच में एक वो काबली वाले का गीत गुनगुनाता हूँ, ऐ मेरे प्यारे वतन। प्यारे वतन, क्या बात है, क्या बात है। वो वाला गीत है, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने पे लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। सबसे रंगीन सुबह तेरी, सबसे सुंदर तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। बहुत सुंदर। सुमेधा जी आपकी पत्नी है, आपकी प्रेमिका रही, आपने उनको बहुत पसंद किया। सुमेधा जी से अलग अगर किसी खूबसूरत अभिनेत्री के साथ फिल्मों में काम करने का मौका मिलता तो कौन सी हीरोइन होती? अब तो अगर मैं पहले पैदा होता तो मीना कुमारी के साथ कर लेता। क्या बात है। थोड़ा सा लेट पैदा हुआ। और इधर के दौर में किस अभिनेत्री के साथ?
घर के अभिनेत्रियों के मामले में मेरा थोड़ा सा हाथ तंग है। अच्छा, लेकिन आपने अभी आप जो रिकॉर्ड कर रहे हो सुमेधा जी आगे ना पीछे सुनेंगी जरूर। तो इसलिए मैंने मीना कुमारी का नाम ले दिया सबकी सुविधा के लिए। लेकिन सबसे समर्थ और सबसे भावप्रवण अभिनेत्री का आपने नाम दिया। एक आखिरी सवाल, इसके बाद प्रणीत जी को मैं मंच सौंपूंगा। बच्चों के साथ रहते हुए, बच्चों का बचपन गुलजार करते हुए, उनके जीवन में रोशनी देते हुए, उनके साथ खेलते हुए वे कौन सा क्षण है जो आपको सबसे ज्यादा आनंद देते? देखिए, जब बच्चे मुझसे झगड़ा करते हैं, मेरी बात को चुनौती देते हैं और कई बार टोक देते हैं मुझे, जैसे मैं जल्दी जल्दी खाना खा रहा हूँ तो आश्रम में भी हमारे बच्चे इतना अधिकार रखते हैं कि वो कहते हैं भाई साहब जी इतना जल्दी जल्दी खाते हो आप खाना, इतना ठीक नहीं है, पेट के लिए ठीक नहीं है। या मैं उनके साथ जब घूम रहा होता हूँ और तेजी से चलता हूँ तो वो मुझे टोक देते हैं और पकड़ के रोक लेते हैं। तो उनका जो अधिकार मेरे ऊपर है, जो मित्रता का भाव है मेरे साथ, वही मेरी ताकत है। मैंने कभी अपने जीवन में किसी भी बच्चे को ये नहीं सोचा कि वो उम्र में कम है इसलिए अकल में भी कम होगा, या कोई रहम कर रहा हूँ मैं उसके ऊपर। मैं बिल्कुल, मेरे मन में आती नहीं है भावना। मैं सोचता हूँ कि इस बच्चे से जो सीखा जा सके, जितनी देर सीखा जा सके उतना अच्छा। कैलाश जी, हम आपका धन्यवाद नहीं कर सकते। एक बहुत महाकाव्यात्मक जीवन आप जी रहे हैं, करुणा का समुद्र है आपके मन में, लंबी बात हो सकती है। अभी हमारे पास समय की सीमा है, तो मैं इस बातचीत को अपने यही विराम देता हूं। बहुत अच्छा लगा कि आपने इस बात के लिए मेरा चुनाव किया कि यतीन्द्र बात करेंगे। आपका बहुत आभार। और अब मैं प्रणीत बब्बर जी को मंच सौंपता हूं, अपने लोगों के साथ वो बात करें। कैलाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। प्रणीत जी, आपका मंच है। Yeah. Thank you so much, Kailash ji. We have about over 400 viewers watching you today. And every one of them has put their hand up and they want to ask you a question. First, I have to apologize that my Hindi is not good enough. So no problem, no problem. We can speak in English as well. Of course, if somebody is asking question in Hindi, that's fine. I'm going to reply to him or in Hindi, otherwise in English, so no problem. I loved your phrase of the globalization of compassion. And I'm going to ruthlessly use it everywhere. It needs to be used, it needs to be talked about, it needs to be said, especially in a day like today, where, you know, and the follow-up about the supply chain of gratitude, very, very important for the coming generations to learn this. Kailash ji, I'm going to ask Manisha to bring Inderpreet from the Ajit newspaper on for the first question to be asked of you. I think this Ajit newspaper is a Punjabi newspaper, and hope Manisha is not going to ask in Punjabi. I can't answer in Hindi or in English. No problem. That should be fine. Manisha, any? Do have Inderpreet ji here. Inderpreet ji, please, you can ask your question. Yeah, sure. सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, मनीषा जी। नहीं सर, मेरा नाम इंदरप्रीत पन्नू है, मैं अजीत वेब टीवी से आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है जी। मैं पंजाबी में नहीं पूछूंगी, मैं आपसे हिंदी में पूछूंगी सवाल। हेलो। यस, इंटरव्यू मत लेने लगना, सवाल पूछिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसे हम सब जानते हैं कि आपने जो काफी लंबे समय से आप लगे हुए हैं, जो बाल मजदूरी है उसको खत्म करने से मुक्त करवाने के लिए, सो अभी की मैं बात करूं तो मानवीय अधिकारों की क्या स्थिति और पहले से कितना सुधार हुआ है इसे लेकर? देखिए, मानवीय स्थिति और मानव अधिकारों दोनों क्षेत्रों में दुनिया में बहुत तरक्की हुई है जी। लेकिन ये जब से महामारी खुली है कोरोना वायरस की, बहुत
चिंता है हम लोगों को और हम जैसे बहुत सारे लोगों को कि शायद ये सभ्यता का संक्रमण भी कहते हैं, कह सकते हैं आप, क्राइसिस सिविलाइजेशन। तो इसे हेल्थ क्राइसिस कह रहे हैं, ये सच, इकोनॉमिक क्राइसिस कह रहे हैं, ये भी सच है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन जैसा भी है, जहां पर बहुत सारी चीजें बदलेंगी। उदाहरण के लिए अब घरों में हम लोग बैठे हैं, स्कूल घरों से चल रहे हैं, यानी कि सब ऑनलाइन हो रहा है, स्क्रीन से ही बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तो ये जो एकाकीपन है, ये एक अलग तरह के समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। और बहुत एकाकीपन का मतलब लोनलीनेस, टेंशन है, एंग्जाइटीज हैं, फेथलेसनेस है, एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि प्रायोरिटीज सारी बदलेंगी, अब सरकारों की प्राथमिकताएं ये होंगी कि सबसे पहले तो जिंदगियों को बचाया जाए, फिर आगे भी ये चलेगा, कोई नहीं जानता कि चलेगा, कितने साल तक चलेगा। तो जिंदगी बचाना, फिर आजीविकाएं बचाना ताकि जिंदगी उस तरीके से भी बच सके। तो प्राथमिकताएं बहुत बदलेंगी, हेल्थ पर बहुत जोर होगा, लाइवलीहुड पर बहुत जोर होगा, और इनकम जनरेशन वगैरह करना, जॉब क्रिएट करना, इन पर जोर होगा। अगले 5-4 साल तक लगता है दुनिया में ये चलेगा। और इसका अर्थ ये निकलेगा कि जो बाकी मानव अधिकारों का स्रोत है कहीं संकुचित होगा। एडवोकेसी हैं, कैंपेन्स हैं, लीगल एक्शंस हैं, जुडिशरी के एक्शंस हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस दिशा में जितने आगे बढ़ सकते थे शायद नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत काम की इस वक्त जरूरत है कि हम मानवता के चेहरे को इसमें से बचा सकें, और हम लोग इसमें बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं भी और मेरे कई साथी, बहुत सारे नोबेल लॉरिएट्स और दूसरे लोग लगे हुए हैं कि जो सबसे ज्यादा उत्पीड़ित, सबसे ज्यादा वंचित वर्ग हैं, most deprived and marginalized people should always be kept in account. We should not forget them and we should not leave them out. तो ये कोशिशें हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में आपकी जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है? मैं तो बहुत इन चीजों में, प्रोजेक्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ, थोड़ी जानकारी रखता हूँ कि क्या हो रहा है, और पिछले लगभग 20 सालों से 40-45 देशों में काम कर रहा हूँ, और भी अधिक जानकारी हो सकती है कर रहा हूँ। लेकिन हमें पता है कि पंजाब में हमारे साथियों ने बहुत सारे जो बच्चे बिहार से और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से लाए थे, करके उनको छुड़ाया है वहाँ से, और पुनर्वास की कोशिश की है, इस तरह के काम किए हैं। लेकिन जब भी पेंडेमिक शुरू हुआ, ये कोरोना वायरस का ब्रेकडाउन हुआ, तो उसी वक्त से हमारे साथियों ने न केवल पंजाब में बल्कि पूरे देश में ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज को भी शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि हमारे लोग करीब 85,000 लोगों के भोजन का प्रबंध करवा रहे हैं, जिसमें 8-10 हजार लोगों को तो सीधा हमारे यहाँ से ग्रोसरी और या फूड पैकेट्स जाते हैं। हमारे आश्रमों को अब कम्युनिटी किचन्स में तब्दील कर दिया गया है। तो ये काम हो रहे हैं, और पंजाब में भी हमारे साथी जोर शोर से इसमें लगे हुए। Manisha, can we move on to the next question, which is from Nilima ji? कैलाशी नमस्कार। नमस्ते। आपसे रूबरू होके हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। मैं नीलिमा डालमिया आधार हूँ, दिल्ली विमेन एहसास। मेरा एक सवाल भी है और एक ऑब्जर्वेशन भी है। मैं ये सोचती हूँ कि आज के युग का अगर आपको हम गांधी कहें तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं 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 बहन जी, आप अमिताभ आधार जी या रामाधार जी से रखती हैं? जी, अमिताभ मेरे हस्बैंड हैं और रामाधार जी मेरे फादर इन लॉ थे। जानता था, रामाधार जी हमारे बहुत बहुत परामर्शदाता, बुजुर्ग, सहयोगी, मित्र, और मैं बड़े वो तो कैलाश, अमिताभ तो ये मेरा तानसेन रोड पे बहुत आना जाना मेरा हुआ है। और इसके बाद ये जो हनुमान, ये जो आपका हनुमान रोड, हाँ, हनुमान रोड पर भी मैं आता रहा हूँ, और अमिताभ
से भी मेरा बहुत परिचय रहा। आपको आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं और वो भी ये सुन रहे हैं मेरा सवाल। तो जी। मेरा सवाल आपसे कैलाश जी ये है कि आपने एक टेड टॉक में कहीं कहा था, जी। एंकर आइडिया एक्शन एज योर मैप फॉर सॉल्विंग प्रोग्राम्स। तो जी। मेरा सवाल ये है कि कैलाश सत्यार्थी को गुस्सा क्यों आता है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। जैसा मैंने उस टेड टॉक में भी कहा था कि आई स्ट्रांगली फील दैट एंगर its own energy, its own potential, and if we are able to use that anger in a positive manner, in a constructive manner, in a more innovative manner, then we can develop new ideas and eventually put those ideas into action. तो अगर हम क्रोध को नकारात्मक तरीके से देखते हैं तो किसी को नुकसान पहुंचाने के कारण या हमारे अहंकार में कहीं चोट लगती है, हम कोई चीज चाहते हैं वो ना मिले तो हमें गुस्सा आता है और हम किसी ना किसी को दोषी ठहराते हैं। कई बार हम असफल हो जाते हैं तो हम दूसरों पे दोष डाल के गुस्सा होते हैं। तो ज्यादातर अपने स्वार्थ या अहंकार के वजह से गुस्सा आता है। लेकिन अगर कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है, कहीं इस तरह की हालत हो रही है जो कि मानवता के लिए ठीक नहीं है, तो गुस्सा आना चाहिए। अगर हम उस गुस्से की जो ताकत है उसको छोटी छोटी चीजों में, किसी का नुकसान पहुंचाने में, बदला लेने में, हिंसा में ना लगाएं और उस गुस्से का इस्तेमाल अगर बेहतरी के लिए करना चाहें तो करेंगे। आप देखें कि हमारे देश में, एक छोटी सी बात कह रहा हूं मैं, कि अभी तक ये कोरोना का प्रकोप शुरू होने से पहले तक जो रिपोर्टें थी कि हर घंटे में 4 हमारी बेटियों या हमारे बच्चों के साथ बलात्कार अथवा यौन शोषण हो रहा था हर घंटे में। हमारे देश में हर घंटे में 6 से लेके 7 बच्चे, कहीं कहीं 8 बच्चे चुराए जाते थे और उनको जानवरों से भी कम कीमत में खरीदा बेचा जाता था। और अभी भी ये चल रहा है। अभी भी एक रिपोर्ट आई है इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड की, और उस रिपोर्ट ने हमारी आंखें खोल दी कि लॉकडाउन शुरू होने के चंद दिनों के अंदर ही अंदर जो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है या पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मटेरियल है, उसकी डिमांड लगभग दुगनी हो गई। तो इन सब चीजों को देखकर अगर हमें गुस्सा आता है तो उस गुस्से को हम सही मायने में बेहतरी के लिए उपयोग कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। Manisha, folks, can we just please limit it to one question? We only have time for one more guest. Apra will be on next. Hello, good evening, sir. Thank you so very much. What a brilliant show. आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी वात्सल्य की। मेरा सवाल एक छोटा सा है क्योंकि आप एजुकेशन से है, that during this lockdown with schools and colleges shut down, learning has moved online, जैसे कि आपने भी कहा, and this has further highlighted India's digital divide and structural inequalities. Children from marginalized communities, they don't have access to online learning and, they're struggling to eat. How will this period affect their education in the medium and long term? And will these poor children ever return to classrooms? You are absolutely right that this divide, not only the digital divide, but the inequalities, the inequalities and discriminations are now more exposed, and one can feel that they are growing. And if we are not able to address them with utmost priority and compassion now, then we are going to lose the entire generation, or I would say that the irreparable loss is going to occur very soon. So we have to understand this thing. आपको ये समझ में आ रहा है, आप जैसी हमारी बहनें बेटियां देश भर में देख रही हैं, समझ रही हैं इन चीजों को, तो सरकारों को और सामाजिक संस्थाओं को इस पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये सच है कि अभी और क्या किया जा सकता है। Those who can afford and those children are going to good schools or costly schools, getting costly education, they are able to continue their education through their laptops and computers and so on. लेकिन बाकी बच्चों की तो बहुत बुरी हालत है और इसको लेकर हमको बहुत
मुद्दे उठाने पड़ेंगे और लड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि हमारी जब प्रायोरिटीज बदलेंगी, बजटरी एलोकेशंस की प्रायोरिटीज बदलेंगी, तो उसमें बच्चे बने रहें, उनका ध्यान रहे, ऐसा करना पड़ेगा उनको। और हम लोग, मैं और मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि करीब 40-50 नोबेल लॉरिएट और 25-30 जो दुनिया के बहुत जाने माने मॉरल लीडर्स हैं, ग्रासा मसेल हैं या मैरी रॉबिन्सन हैं, दलाई लामा तो हैं ही हैं, तो ये सब हमारे मित्र हैं। और इन सब के साथ मिलकर हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो $5 ट्रिलियन का पैसा G20 ने कोविड-19 इमरजेंसी फंड के तरीके से घोषित किया है, उसका कम से कम $1 ट्रिलियन पैसा हो उन बच्चों की पढ़ाई, उनकी दवाई, उनके रखरखाव पर, उनकी सुरक्षा पर, जो बच्चे सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं या उनके परिवार जो सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं। So 1 trillion means 20% of that amount must go to 20% most marginalized people of that lowest section of strata of society in the world, globally. So we are in negotiation, in contact with the heads of the states as well as the world leaders, United Nations and G20 leaders. तो हम उसको पुश कर रहे हैं एजेंडा को, लेकिन समाज में हर तरीके से जब तक ये बात नहीं उठेगी कि इस पैंडेमिक का और उल्टा असर ना पड़ जाए ऐसा जिससे हमारे बच्चों, सबसे ज्यादा गरीब बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएं, ये नहीं होना चाहिए। That's why in the beginning I said that this is a serious danger, or I would say that it's a crisis of civilization. Thank you. Thank you so much, Yatindra ji and Kailash ji. This has been an incredible evening, such an engaging session, and I think we have all taken a lot of insights from this discussion. We are now at the end of this wonderful session, and I want to thank everybody, the Prabha Khaitan Foundation, and all our viewers for engaging and enriching our lives. Thank you so much, ji. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्ते, आपसे फिर मुलाकात होगी। जी सर।